Yes, student. Today I continue my the second lecture of class 9, chapter 8, motion. And the starting topic is uniform motion. Uniform motion, when a body travels equal distance in equal interval of time. यहाँ पर हम types of motion के बारे में बात कर रहे हैं. There are two types of motion. Consider if we travel point A to point B, 1 kilometer and the 1 kilometer taking the timing 2 hour and 2 hour. That body travels from the point A to point B and taking the same distance travel in the same timing. So I discussed according to definition, when a body travels equal distance is 1 kilometer in equal interval of time. Equal interval of time, that will be 2 hours. So the motion is called the uniform motion. And the non-uniform simply मैं कहना चाहूँ non-uniform कैसे बात करें. Non-uniform का मतलब है इन टू थिंग्स. यहाँ पर मैंने दो चीजों के बारे में बात करी है, डिस्टेंस और टाइम. इन दोनों में से मैं किसी भी एक को अगर अनइक्वल कर दूं, किसी भी एक को अनइक्वल, डिस्टेंस को या टाइम को, तो वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर द नॉन यूनिफॉर्मली, so there are two cases will be arises from point P to Q, from M to N. The cases will be when a body travels unequal distance. So firstly I consider the unequal distances, 1 kilometer, 3 kilometer and the 7 kilometers. That will be taking the timing 2 hours and 2 hours. And the another case is 1 kilometer and the 1 kilometer and taking the unequal timing 2 hours, 3 hours and the 5 hours and 5 hours. So whenever we consider, there is in the first case the unequal distances. There are two cases when a body travels unequal distances in equal interval of time. Unequal distances. When a body travels unequal distances in equal interval of time. Unequal distances travels in equal interval of time. So the first case is unequal distances. यहाँ पर unequal distances है and the timing will be same. Or that the second case will be for the second diagram. Equal distances travel in unequal interval of time. Equal distance travel in unequal interval of time. So the unequal timing is 2, 3 and 5. So there are two cases will be arises for the non-uniform, and that is the case of uniform. That's clear. And now I come on the third topic, speed. Speed, the rate of distance traveled by a body with timing in any direction is called speed. बताना चाहूंगा इसके बारे में. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहूंगा इसके लिए. If a body travels 10 kilometer in 2 hours, then find the speed of the body. And the solution is speed is equal to distance upon time. The formula is given. The distance is 10 and the timing is 2. 2 5 is 10. That's the 5 kilometer per hour. इस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा. इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया गया है, टाइमिंग दिया गया है और आपने स्पीड निकाली. इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कुछ टाइमिंग लेकर, तो अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूँ डिस्टेंस और टाइम से, तो जो नई क्वांटिटी बनकर आएगी दैट विल बी कॉल्ड स्पीड. सो द स्पीड इज द कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस और टाइम. यही मैंने यहाँ लिखा है रेट. रेट मीन्स टाइमिंग. इन द फिजिक्स द रेट विल बी कंपैरिजन विद द टाइमिंग. एंड द इकोनॉमी इन द डेली लाइफ, इकोनॉमी इज द कंपैरिजन टू द थिंग्स विद द मनी. जो डेली लाइफ है हमारी, उसमें हम किसी भी चीज की कंपैरिजन करते हैं मनी के साथ. जबकि फिजिक्स में जहां पर हमें रेट मिलेगा मोस्टली, वहां पर हम रेट जो कंपैरिजन यूज करेंगे दैट विल बी यूज फॉर द टाइमिंग. यानी कि किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं टाइम के साथ कंपेयर करता हूं तो दैट द वर्ड विल बी यूज्ड इज रेट. सो द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, जो डिस्टेंस ट्रेवल करी किसी बॉडी ने, उसका रेट किसके साथ करा हमने, टाइमिंग, यानी रेट का टाइमिंग लिया इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है.
और मैंने आपको स्केलर वेक्टर से प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें केवल डायरेक्शन, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड यानी मैथमेटिकल वैल्यूज है वो स्केलर है, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ली जाए वो वेक्टर्स है। जैसे डिस्टेंस, यहां पर मैंने डिस्टेंस लिया है और डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में होगी। जब स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए मैंने देखिए क्वांटिटी बनाई है स्पीड। इसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी जो हमने लेक्चर्स में लिया था स्केलर वेक्टर्स में, तो वेलोसिटी यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हमने स्केलर्स को स्केलर के साथ ही लिया है और वेक्टर्स को वेक्टर के साथ में यहां पर कंसीडर किया है ताकि हमें इजीली समराइज हो सके। सो द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विद द टाइमिंग इन एनी डायरेक्शन, डिस्टेंस तो है लेकिन किसी भी डायरेक्शन, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, इज कॉल्ड स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला लेके मैंने आपको यहां पर समझाया है कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर मैंने 2 आवर में लिए, तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम मैंने दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और यहाँ पर ये मेरे पास एक वैल्यू आई, दैट्स कॉल्ड द स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैं कार से चल रहा हूं और मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल किए 2 आवर्स मुझे लगे इसमें, तो मैं इस तरीके से उस कार की स्पीड निकाल सकता हूं कि मैंने कितने स्पीड से उस डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। सो द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। सो इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, ये आर यूनिट्स है, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेम थिंग इज अप्लाई फॉर द वेलोसिटी। वेलोसिटी में बस यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट यूज करूंगा क्योंकि मैं एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए काम कर रहा हूं। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी विद टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का टाइमिंग के साथ में, वहां पर हमने उसका रेट कंसीडर किया है। या मैं आपको डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस अगर डायरेक्शन के साथ चलेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, यही हमने पढ़ा हुआ है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। सो द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ये भी लिख सकता हूं, द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी विद टाइमिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इन दोनों में से कोई भी डायरेक्शन में यूज कर सकता हूं, बस वर्ड से ध्यान रखना है, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट and the distance traveled with the timing of particular direction. Velocity is equal to displacement upon time. ये वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज को हम अपर एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मल v यूज किया है, यहाँ पर हमने वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके ऊपर एक एरो बना के हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। s इज द डिस्प्लेसमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए एरो लगा है, और अपॉन t, इसकी ऐसा यूनिट सेम इसी तरीके से मीटर पर सेकंड होती है, और ये स्केलर की जगह वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर की। Now continue the next topic is conversion factors for किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। ये हमारे 6 to 8 की चीजें हमने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में हम इसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल से। इसके बारे में बात करेंगे। देयर आर 2 कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। फर्स्ट कन्वर्जन इज चेंज फ्रॉम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर एक चीज लिखी मिलती है अगर, तो इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। 1 आवर का मतलब 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, अगर हम बात करें तो 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे 60 इंटू 60, 1 से ज्यादा हो रहा है, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, इतने सेकंड, इसका मतलब 60 मिनट। अब 60 मिनट कितने होते हैं 1 आवर होते हैं, इसका मतलब 1 आवर में कितने सेकंड हो गए 60 इंटू 60 सेकंड। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1 आवर की 60 इंटू 60 सेकंड। इसको आप सॉल्व करेंगे, कटिंग करने के बाद में 0 0 कैंसिल आउट होंगे, दो यहाँ पर 2 5 10, 2 3 6, 6 3 18 और 5 upon 18 मीटर पर। इसका मतलब अगर किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो मुझे 5 upon 18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे आप फॉर एग्जांपल फॉर्मूला पढ़ते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसी तरीके से क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, तो 5 upon 18 होते हैं। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। देखिए एक चीज हमारी इसमें बुक में भी है, कंफ्यूजन हो सकता है वहां पर, काफी जगह में ये लिखा हुआ मिलेगा 1 किलोमीटर पर आवर। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये चीज पावर 1 में है, और इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो ये हो जाएगी 1 किलोमीटर, और कोई भी चीज जब ऊपर जाती है तो माइनस में बदल जाती है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो कुछ बुकों में आपको ये ऐसा मिलेगा 1 kmh की पावर -1, तो आप इसे समझ जाएंगे किलोमीटर आवर की पावर -1। इसको ही इसी तरीके से लिखा जाता है।
तो ये जो चीज होती है, ये जो अपॉन वाली होती है, ये ऊपर जाके नेगेटिव में दिखा सकते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड के लिए आपको कुछ जगह ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो ये एक ही बात मीटर पर सेकंड को इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। इसी तरीके से किलोमीटर पर आवर को भी ऐसे हम लिख के दिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, सेकंड थिंग, चेंज फ्रॉम द मीटर पर सेकंड। अब जरा ध्यान से देखिए, 1 किलोमीटर में इतने हैं, तो इसे मैं उल्टा में लिख सकता हूँ कि 5.18 मीटर पर सेकंड में 1 किलोमीटर होते हैं। आइए दिखाना चाहेंगे, 1 किलोमीटर में 5.18 मीटर पर सेकंड। मैंने इसको उल्टा लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। 5.18 मीटर पर सेकंड में 1 किलोमीटर पर आवर है। अब कोई चीज अगर ये है, इससे मैं कम कर रहा हूँ, इससे कम के लिए क्या होता है, हमेशा डिवाइड करते हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर हमने 5.18 से 1 किया, कम के लिए डिवाइड किया, डिवाइड इससे इसी पे डिवाइड हो जाएगा 1/5.18। अब डिवाइड में डिवाइड टू डिवाइड क्या होता है, अपर चला जाता है, जो चीज होती है उल्टा हो जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। ये 18 वाली चीज ऊपर चली जाएगी, 5 में चला जाएगा। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड में इतने होते हैं। इसको मैं उल्टा भी याद कर सकता हूँ सिंपल थिंग्स में कि 1 किलोमीटर में इतने, तो अगर ये वाली चीज 1 में निकालनी है तो इसे उधर ले जाओ, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 मीटर पर सेकंड में इसका उल्टा इधर आएगा, तो ये 5.18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18/5 हो जाता है। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी याद कर सकता हूँ। सो दैट्स इजी। इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लेना चाहेंगे जरा, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकंड। किसी बॉडी की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में निकालिए, अगर वो ट्रेवल्स कर रही है 40 किलोमीटर 5 आवर्स में। डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, मुझे स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर में दिया हुआ, आवर में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो वैल्यू रखेंगे 40/5, किलोमीटर आवर दोनों दिए हुए हैं, 5/40 सिंपल आ गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आई है हमें मीटर पर सेकंड बदलने के लिए। मैंने अभी बताया आपको कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 की हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 की यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। सो दैट्स विल बी स्पीड इन मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड इन मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर मैंने निकाला, किलोमीटर पर आवर में इसे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए मैंने क्या किया है, 5/18 की मल्टीप्लाई की, जो हमने भी पढ़ा हुआ है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलने के लिए मुझे 5/18 की मल्टीप्लाई की। इसको मैंने कैंसिल आउट किया, 2 से 5/8 और 2/2 4/0/9 डिवाइड करेंगे 9 और 20 को, तो 2.22 मीटर पर सेकंड। दैट्स विल बी आंसर। Yes, student. Continue. The next topic is types of speed. Types of speed. There are 3 types of speed. First one is uniform, second one is non-uniform, and the third one is average speed. First one is uniform speed. There are 3 types of speed in which uniform speed. देखिए यूनिफॉर्म मोशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से वो काम करते हैं। इसी तरीके से हम बात करना चाहिए यूनिफॉर्म के बारे में। अब मोशन और स्पीड में क्या डिफरेंस है, मोशन से आगे का टॉपिक है स्पीड। इसका मतलब स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने देखिए इसमें लाइन लिखी हुई, लाइन समझाना चाहूंगा वाली, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आराम से आप देखिए निकाल सकते हो। इसके 3 केसेस यहाँ पर अराइज होंगे। सबसे पहला केस तो बनाना चाहूंगा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, वो 1 किलोमीटर चल रही है 2 आवर्स में, 1 किलोमीटर 2 आवर, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। So the speed will be s1 distance upon time. So that will be 1/2 kilometer per hour. Same thing is s2 is equal to 1/2, and the same thing s3 is equal to 1/2. The value will be same. So it's a uniform speed. Same है. Simple example. लेकिन साथ में उन्होंने लिखा दैट इज एडिशनल वर्ड, दैट इज हैविंग कांस्टेंट और सेम वैल्यूज ऑफ स्पीड। अब इस लाइन का मतलब क्या है समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अगर एक मोशन मुझे इस तरीके का दे दे और इसमें मुझे क्वेश्चन को इस तरीके से डेवलप करा इसने कि टू किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, दैट इज 1 आवर, 2 hour and 3 hour. So there is s1 is equal to distance upon time. So that will be 2/1 is equal to 2 kilometer per hour. And the second one case is 4 s2 is equal to 4/2. So that value will be 2, and s3 is equal to 6/3.
3 to 6, so that's value will be same. इसका मतलब देखने में मुझे कैसा लग रहा था, कि देखने में मुझे लग रहा था कि ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर अनइक्वल्स थे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में हमने देखा हुआ है कि वैल्यूज कैसी आती है अनइक्वल वाले केसेस कि अनइक्वल डिस्टेंस, इक्विवेलेंट ऑफ टाइम, कोई भी एक चीज अनइक्वल है। लेकिन यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर डिस्टेंसेस और टाइम दोनों ही अनइक्वल लिए गए हैं और मैंने यहाँ पर स्पीड निकाली। इसका मतलब अगर इस तरह की केसेस के न्यूमेरिकल हमें मिलते हैं तो उन्हें हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, और यहाँ से पता लगा सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्पीड सेम आती है दैट हैव द कांस्टेंट और द सेम वैल्यू ऑफ स्पीड, दैट इट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। एंड इन दैट केस, दैट द अनदर केस, यहाँ पर भी मैंने सेम काम किया और यहाँ पर भी मुझे सेम वैल्यूज मिल गई। इसका मतलब इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, तो अगर ये सेम वैल्यूज भी रखते हैं तो यूनिफॉर्म है। इसी का एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर निकालता और इनमें से ये वाली वैल्यूज कोई भी अनइक्वल आ जाती है, इस वाली केस में अनइक्वल आ जाती है, तो ये केस हमारा नॉन यूनिफॉर्म का हो जाता है। तो इसका मतलब हम किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल्स में स्पीड निकालेंगे और स्पीड निकालने के बाद अगर हमें वैल्यू सेम मिलती है तो वो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और अगर वो अनइक्वल्स मिलती है, डिफरेंट आती है, इनमें से कोई भी एक स्पीड डिफरेंट आ जाती है, इन सारे में से कोई भी अनइक्वल हो जाती है या इनमें से कोई अनइक्वल हो जाती है, सो दैट विल बी द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डिफाइन करना चाहिए व्हेन बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। ये तो हमें पता है पीछे से ऑलरेडी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अनइक्वल डिस्टेंसेस अगर किसी भी एक को अनइक्वल कर दे तो डिस्टेंस को या टाइम को दोनों में से किसी को भी अनइक्वल कर देते हैं तो उस केस में ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर वेरिएबल का मतलब भी ये वेरिएबल माने डिफरेंट वैल्यूज। एंड द थर्ड टॉपिक इज एवरेज स्पीड। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस। ये वो केस है इसके बारे में बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ट्रेवल कर रही है, एवरेज के बारे में बताना चाहूंगा। टोटल डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर ट्रेवल इन 1 hour एंड 2 hours, और मे बी वी हैव चेंज द वैल्यूज। ओके, कोई पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जा रहा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होगी, और पहले वो पी से ए तक जाता है फिर वो ए से क्यू तक, जिसमें पार्ट पी टू ए में उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल्स किए हैं 2 hours में, एंड द ए टू क्यू जाने में उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं 3 hours में। अब मैं यहां पर निकालना चाहता हूं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने यहां पर इसे अप्लाई किया, टोटल डिस्टेंस 10 + 20 30 अपॉन 2 + 3 5, सो दैट इज द एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से मैं किसी भी न्यूमेरिकल्स को रिजॉल्व कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं अगर मुझे ये क्वेश्चन इस तरीके मिलता है। ये है क्या एवरेज स्पीड? ये एक रेशियो है जो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की केस में उसे अप्लाई करते हैं इस तरीके के न्यूमेरिकल्स के लिए। इसके न्यूमेरिकल मैंने और भी लिया हुआ है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसे ट्राई करना चाहेंगे, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसने कहा है कि कार ट्रेवल्स कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट आवर में, 40 किलोमीटर सेकेंड आवर में, एंड 30 किलोमीटर आवर इन द थर्ड आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि एवरेज स्पीड दी है तो मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर डिस्टेंस मुझे किस क्वेश्चन में गिवन नहीं, केवल टाइम गिवन है, फर्स्ट आवर सेकंड आवर थर्ड आवर, ये टोटल 3 hours के लिए। तो मुझे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। मेरे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो पढ़ते हुए आ रहे हैं 6 से 8 तक, ये अप्लाई करते हैं। तो 20 स्पीड यहाँ पर 20 देखिए जरा, फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर चला उसने फर्स्ट आवर में, यानी कि 20 किलोमीटर स्पीड है और फर्स्ट आवर का मतलब टाइम इन 1 hour, सो द स्पीड विल बी 20 एंड द टाइम इज 1 hour। दोनों वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर। 20 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। जिस तरीके से मैंने फर्स्ट डिस्टेंस निकाला, सेकंड एंड थर्ड में मैं सेम यही काम करूंगा। सेकंड आवर में स्पीड 40 है और आवर 1 टाइम 40 किलोमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड में जब मैं निकालता हूं, थर्ड में जब मैं निकालूंगा, सो दैट्स वैल्यू विल बी 30 फॉर द थर्ड आवर, 30 इंटू थर्ड आवर 1 hour, सो दैट्स वैल्यू विल बी 30 किलोमीटर। एवरेज स्पीड मेरे पास लग सकती है आराम से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 20 + 40 + 30, it will be applied, and the timing will be first hour, second hour, and the third hour. So that's addition will be 90/3 and dividing 30 km/h. That will be the answer. That's it. Yes, student. Now we continue. The next topic is types of velocity. There are 3 types of velocities. First one is uniform velocity. Next one is non-uniform velocity, and the third one is average velocity. First one, uniform velocity. When body travels equal displacement. देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड
और एवरेज स्पीड। ये हम ऑलरेडी तीनों टॉपिक इससे प्रीवियस में अभी हमने देखे हैं। उनमें और इनमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जहां पर हमने देखिए स्पीड के लिए आप हमेशा डिस्टेंस को लेते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में आप वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आप वेलोसिटी ले रहे हैं, इसलिए हमें प्रेफरेंस दे दिया डिस्प्लेसमेंट को। तो जहां जहां पिछली डेफिनेशन में आपने क्या यूज किए हैं, सभी जगह डिस्टेंस यूज किए हैं, वहां पर अब सभी जगह आप डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। तो आइए इसी के बारे में सेम डिस्कशन है बिल्कुल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, उसमें क्या था, इक्वल डिस्टेंस था, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हैविंग कांस्टेंट और सेम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी। वहां पर सेम वैल्यूज हमें स्पीड की मिलती है, यहाँ पर क्या मिलेगी, वेलोसिटी। बस डिफरेंस क्या है, केवल वहां पर हमें डायरेक्शन नहीं गिवन थी, इन क्वेश्चंस में हमें डायरेक्शन भी गिवन होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म। सेम थिंग इज नॉन यूनिफॉर्म के लिए, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल, डिस्टेंस नहीं है पर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्टेंस के लिए यूज करते थे स्पीड यहाँ पर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या इसका दूसरा केस, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में दो केस मिलते हैं, कोई भी एक अनइक्वल करते हैं, डिस्टेंस को या टाइम को, एक को अनइक्वल करते हैं, तो ये और केस उसी के लिए। और इक्वल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम वेलोसिटी ले रहे हैं इसलिए डिस्टेंस लेगा, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ट्रेवल्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज हैविंग वेरिएबल ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्पीड की वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी कंसीडर करें, then velocity is called the non-uniform velocity. That's it. And the next one is average velocity. एवरेज स्पीड में क्या था, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन बस फर्क क्या है, यहाँ पर एवरेज स्पीड गिरेगा, आपको एवरेज वेलोसिटी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और स्पीड में क्या था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो देयर इज अ डिफरेंस ओनली डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। इसका एक फॉर्मूला और भी एवरेज वेलोसिटी का, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, इसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो इसका एक फॉर्मूला और भी रीड करेंगे यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, v इज इक्वल टू u प्लस v। लेकिन ये कब भी एप्लीकेबल होगा जब हमें स्टार्टिंग और फाइनल केवल दो वेलोसिटीज हमें गिवन होंगी, ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल। जैसे इसका न्यूमेरिकल लेना चाहूंगा मैं, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, कोई जर्नी है, हम ट्रेवल कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इसमें हाफ ऑफ जर्नी, यानी कि हाफ जर्नी मैंने ट्रेवल्स की है कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड द नेक्स्ट 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। सो दैट इज गिवन v1 is equal to 40 किलोमीटर पर आवर and the v2 is equal to 20 kilometer per hour. There are two velocities will be given, so we can find the velocity by the help of that formula. V average is equal to v1 or plus v2, because these are the velocities. So the values will be 40 plus 20 by 2, so that's value 60 by 2, that will be down, and that is 30 kilometer per hour. That's it.